Hello students, here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we will start our chapter number 2, Traveling with Grandfather's Jew. Okay, that chapter is written by Ruskin Bond. The writer of this chapter is Ruskin Bond and it is a humorous story. Humorous means comical story, हास्यप्रद, comedy, full of comedy. Okay. Do you have or would you like to have pets? Read about the adventures that take place when a family decides to travel with few of their exotic and uncommon pets. क्या आपको पेट्स पसंद है, पेट्स रखना? तो हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक फैमिली डिसाइड करती है कुछ अपने एक्सोटिक यानी यूनिक और स्ट्रेंज पेट्स को ले जाने के लिए, अनकॉमन पेट्स को ले जाने के लिए. All aboard Shrimp Poppy. Poppy is here a parrot, grandmother's parrot. As the family climbed aboard the Lucknow Express. When the family was about to climb aboard the Lucknow Express, जब वो लखनऊ एक्सप्रेस पे चढ़ने वाली थी तो जो पप्पी जो पैरट है वो श्रिंक करता है, चिल्लाता है. क्या चिल्लाता है, क्या बोलता है? ऑल अबॉर्ड. ऑल अबॉर्ड मीन्स क्या होता है? Here you can see here the word all aboard, a warning call. Clear? It is a warning call. It is a warning call made to passenger of a bus, ship or train when they are ready for depart. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं. Here you can see now. It is a kind of warning call. Now we were moving for some months from Dehra to Lucknow as the grandmother had insisted on taking her parrot along. Then what happened? They were going to Lucknow from Dehradun. It is Dehra here, it is Lucknow. And grandmother was thinking to take her parrot along. वो अपने parrot को साथ ले जाती है. Grandmother and I insisted on bringing our pets too, a teenaged tiger, grandfathers and a small squirrel. तो क्या होता है कि जब ग्रैंडमदर अपने पैरट को ले जा रही है तो ग्रैंडफादर और मैंने भी सोचा कि हम भी अपने पेट्स को ले जाएं. तो ग्रैंडफादर जो है वो अपने एक टीनेज टाइगर को ले जाते हैं और ये अपनी स्क्वेरल को ले जाता है. एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ टीनेज टाइगर? टिमोथी. एंड द नेम ऑफ द स्क्वेरल इज़ व्हाट? इट इज़ चिप्स. ओके, बट वी थॉट इट प्रूडेंट टू लीव द पाइथन बिहाइंड. इनके पास एक पेट पाइथन भी है. एंड टू हुम दे लेफ्ट एट होम, जिसको उन्होंने घर पे छोड़ दिया है. प्रूडेंट मीन्स हियर, प्रूडेंट मीन्स सेंसिबल एंड केयरफुल इन अवॉइडिंग रिस्क. ओके, प्रूडेंट मीन्स टू अवॉइड रिस्क. हियर यू कैन सी, हियर इट इज़ टू अवॉइड रिस्क. क्लियर? इट इज़ प्रूडेंट. ओके, नाउ they left at home Python. In those days, trains in India were not so crowded and it was possible to travel with a variety of creatures. Clear? The trains were not so crowded and anyone could get with lots of creatures, variety of creatures. Here you can see काफ़ी सारे जीव एनिमल्स को, पेट्स को ले जा सकते थे. एंड ग्रैंडफादर हैड डिसाइडेड टू डू थिंग्स इन स्टाइल बाय ट्रेवलिंग फर्स्ट क्लास की ट्रैवलिंग करते हैं, फर्स्ट क्लास बुक करते हैं. वी हैड 4 बर्थ कंपार्टमेंट यानी कि जो ट्रेन थी उसमें जो कंपार्टमेंट था उसमें 4 बर्थ वाला उनको कंपार्टमेंट मिलता है. एंड देयर टिमोथी द टाइगर, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइगर? इट इज़ टिमोथी, हैड द एंटायर बर्थ टू हिमसेल्फ. ही ऑक्युपाइड द एंटायर बर्थ फॉर हिमसेल्फ. टिमोथी पूरी बर्थ ले लिया. एंटायर मतलब पूरी, कंप्लीट. एंड देन later everyone agreed that Timothy behaved perfectly throughout the journey. The behavior of Timothy was very nice. Okay, he behaved perfectly. Even the guard admitted that. Guard also accepted that he could not have asked for a better passenger. Not stealing from vendors, no shouting at coolies, no breaking of railway property, no spitting on the platform. These are the well behaved manner of Timothy here. Okay, he was not stealing from vendor से कोई भी चीज़ नहीं चुरा रहा था. Not shouting at coolies पे नहीं चिल्लाता है वो. Okay, and even he did not break any railway property also. Not कोई भी रेलवे का कोई भी सामान वो डैमेज नहीं करा था. He was not
destroying any property of railway even, and no spitting on the platform. और वो कहीं भी इधर उधर spitting, what is the meaning of spitting means थूकना, तो वो कहीं भी इधर उधर नहीं थूक रहा था. That is a very well behaved kind of you can say tiger. Okay, that is Timothy. And now, all the same, the journey was not without incident, and before we reached Lucknow, there was excitement enough for everyone. सब कुछ ओके था, लेकिन जर्नी बिना एक्साइटमेंट की हो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो इतनी वेराइटीज़ के एनिमल को लेके जा रहे थे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होना था, एक्साइटमेंट. टू बिगिन विद, Poppy objected to vendors and other people poking their hands in through the windows. अब क्या होता है, जो पॉपी वो जो आपका पैरोट है, जो वेंडर्स या बाकी के जो लोग हैं वो पोकिंग मतलब बाहर निकाल रहे, अपने सिर को विंडो से बाहर निकाल रहे थे, तो उनको वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे. ही डिनाइड, ओके, वो मना कर रहा था. Before the train had moved out of the Dehra station, he had nipped 2 fingers and twigged a ticket inspector ear. अब क्या होता है, जब वो ट्रेन चलने लग जाती है तो ये क्या करता है, ये जो है nipped means bit sharply. What is the meaning of nipped? Bit sharply. शार्प तरीके से 2 fingers को कट कर लेता है वहाँ पे. And then twigged means pulled और twisted, यानी कि खींचना या मोड़ देना. sharply with a sudden movement, अचानक से झटके से तुरंत वो उसके टिकट इंस्पेक्टर के ईयर को, जो टिकट चेक करने वाला था, उसको जो है कस के उसके ईयर को वो खींच लेता है. ठीक है, ट्विस्टेड. No sooner had the train started moving than Chips, my squirrel, emerged from my पॉकेट. इमर्ज्ड मीन्स कम आउट, प्रकट होना, सामने आना. तो जैसे ही ट्रेन चलना शुरू हुई थी, चिप्स जो है, इसकी स्क्विरल का नाम है चिप्स, तो ये जो चिप्स थी ये उसकी पॉकेट से बाहर आती है. ही केम आउट फ्रॉम द पॉकेट, ओके, and then to examine his surrounding. He wanted to inspect everything. He examined everything. Before I could stop him, he was out of the compartment door, securing along the corridor. अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उसके पॉकेट से बाहर निकल जाती है. Securing means moving hurriedly with quick. What is the meaning of securing? Securing means here, securing means moving hurriedly with quick short steps. क्विक शॉर्ट स्टेप्स, मूव हरीडली, जल्दी जल्दी छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ जाना. वो फटाफट आगे चली जाती कंपार्टमेंट डोर से. फिर इसके बाद चिप्स डिस्कवर्ड दैट द ट्रेन वॉज अ स्क्विरल्स पैराडाइज. और चिप्स ने ये डिस्कवर किया, ये फाइंड आउट किया, एग्जामाइन किया कि जो ट्रेन है वो पैराडाइज है. पैराडाइज मीन्स हेवन. इट वॉज लाइक अ हेवन फॉर ए स्क्विरल. ऑलमोस्ट ऑल द पैसेंजर हैविंग बॉट लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ रोस्टेड पीनट्स लेके आए थे. पीनट्स मूंगफली होती है, तो वो सभी पैसेंजर्स के पास थी. बिफोर द ट्रेन पुल्ड आउट, उन लोगों ने परचेज किया था बाहर से, ट्रेन चलने के पहले उनके पास, सबके पास थी. ही हैड नो डिफ़िकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स विथ बोथ चिल्ड्रन एंड ग्रोन अप्स, यानी कि स्क्वेरल एंड एवरीवन लाइक दिस काइंड ऑफ पेट, ओके, एंड देयर वॉज नो डिफ़िकल्टी फॉर हिम टू मेक फ्रेंडशिप. उसने फ्रेंडशिप कर ली सबसे, ग्रोन अप से भी और चिल्ड्रन से भी. It was an hour before he returned to our compartment, his tummy almost bursting. Okay, his tummy was about to bursting. It means he had taken a lots of peanuts. जब 1 घंटा ही हुआ था उसको गए हुए, जब वहाँ से आता है वो बाहर से घूम करके, तो उसकी टमी जो है वो फुल ऑफ पीनट्स, यानी कितने, टमी मतलब आपको पता है, ठीक है, उसका जो पेट था वो पीनट से भरा हुआ था, काफ़ी सारी पीनट्स उसने खा ली थी. एंड देन हियर, आई थिंक I will go to sleep. Grandmother covering herself with a blanket and stretching out on the berth opposite Timothy's. अब जो ग्रैंड मदर है वो सोने की तैयारी कर रही है और अपोजिट जो है टिमोथी के सामने वाली बर्थ पे सोने के लिए तैयार है वो. इट हैज़ बीन अ टायरिंग डे, कहती बहुत थकान भरा दिन था. टायरिंग डे मीन्स थकान भरा दिन. क्लियर? इट हैज़ बीन अ वेरी टायरिंग डे. Aren't you going to eat anything? asked grandmother. Grandmother asked, आप लोग कुछ खाओ, सॉरी grandfather पूछते हैं कि क्या तुम कुछ खाओगी? नहीं. I'm not hungry. I had some soup before we left. You to help yourself from the tiffin basket. तो वो कहती है कि मुझे भूख नहीं है, बिकॉज निकलने के पहले इसने क्या किया था, इसने कुछ सूप वगैरह ले लिया था. तो अब ये कहती है कि आप लोग अपने आप जो है टिफ़िन बास्केट से निकाल करके खा लीजिए खाना.
Grandmother dozed off, and even Poppy started nodding, lulled to sleepy by the clackety clack of the wheels and the steady puffing of the steam engine. तो अब क्या होता है, ग्रैंड मदर सो जाती है, पॉपी भी, उसको भी नींद आने लगती है, उसकी वो भी मूव करने लगता है, नोडिंग मतलब मूव करना, और लर्ल्ड मतलब लेज़ी मोड में वो चला जाता है। जो भी आवाज़ आ रही होती है व्हील की, जो भी अनअरेंज्ड साउंड रहता है उसको उसी में वो वहाँ पे सो जाता है। वेल आई एम हंग्री, आई सेड, व्हाट डिड ग्रैनी मेक फॉर अस। अब ये कह रहा है आई मतलब रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि वो भूखे हो, क्या बनाया है ग्रैनी ने। सैंडविच, बॉइल्ड एग, रोस्ट चिकन्स, gooseberry pie, it is all in the tiffin basket under your berth। तो ये सारे खाने के आइटम्स हैं जो कि बर्थ में के नीचे जो बास्केट है, टिफ़िन बास्केट, उसमें है। एंड देन आई tugged at the large basket and dragged it into the center of the compartment। फिर इसने क्या किया, उसको बाहर निकाला, कंपार्टमेंट के सेंटर में लेके आया उस बास्केट को। द स्ट्रप्स वर लूजली टाइट, और जो है रस्किन बॉन्ड ने देखा कि बहुत लूज बंधा हुआ है। नो सूनर हैड आई अनडन देम विद द लिड फ्लू ओपन एंड आई लेट आउट अ गैस्प ऑफ सरप्राइज। गैस्प ऑफ सरप्राइज मतलब सरप्राइज से, आश्चर्य से हाफने लगना, गैस्प मतलब हाफने लगना। जब वो खोलता है, उसे ओपन करता है, तो वो देख के सरप्राइज हो जाता है। इन द बास्केट वॉज ग्रैंडफादर्स पेट पाइथन कर्ल्ड अप contentedly on the remains of our dinner। अब ये कह रहे जब वो खोला तो उसमें जो है वो देख के आश्चर्य से हाफने लग जाता है, क्योंकि उसमें ग्रैंडफादर का पेट पाइथन था जो कि कर्ल्ड अप था। कर्ल्ड अप मतलब वो जो कुंडली मार के स्नेक ऐसे बैठे रहते हैं ना, इसको हम कहते हैं कर्ल्ड अप। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो वहाँ पर कर्ल्ड अप था। कंस्टेंटली ऑन द, कंस्टेंटली मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं हैप्पी एक्सप्रेसिंग सेटिस्फैक्शन, काफ़ी सेटिस्फाइड था, हैप्पी था। ऑन द रिमेन्स ऑफ आवर डिनर, रिमेन्स मतलब लेफ्ट ओवर, जो भी खाना हमने खाया, जो बच गया वो, तो जो बचा हुआ खाना था उसने खाना पूरा खा लिया, जो भी उनका था अच्छे से खा लिया वो डिनर, और जो भी लेफ्ट ओवर था उसके ऊपर आराम से खुशी के साथ वो कर्ल अप होकर के बैठा हुआ था कुंडली मार के। ग्रैंड मदर हैड इंसिस्टेड दैट वी लीव द पाइथन बिहाइंड। ग्रैंड मदर ने कहा था कि पाइथन को हमें घर पे ही छोड़ देना चाहिए। पाइथन आपको पता है बड़ा सा सांप होता है, बहुत बड़ा सा अजगर जैसे। एंड ग्रैंडफादर हैड लेट इट लूज इन द गार्डन, ग्रैंडफादर ने उसे गार्डन में छोड़ दिया। somehow it had managed to snuggle itself into the tiffin basket, और किसी तरीके से ये snuggle means settle into, ओके मतलब कि उसमें सेट हो जाना, सेट हो गया था ये, ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन में, स्नगल्ड मीन्स, तो वो टिफ़िन बास्केट में सेटल कर लेता है अपने आप को, आराम से टिफ़िन बास्केट में बैठ जाता है। Well, what are you staring at? asked grandfather from his corner. It is the python, and I said, and it has finished all our dinner। अभी कहती है ग्रैंड मदर कि क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, तो वो कहते हैं पाइथन है, और उसने ये भी कहा कि इसने हमारे डिनर को फिनिश कर लिया। हमारा डिनर अब नहीं है, हमारा डिनर जो है बिल्कुल फिनिश हो चुका है। क्लियर क्लास, आगे देखिए। एंड देन all the same the journey was not without incident, and before we reached Lucknow there was excitement enough for everyone। जर्नी में अभी और भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इंसिडेंट्स थी, और हमारे लखनऊ पहुंचने के पहले हम देखते हैं कि एक इस तरह की एक्साइटमेंट और ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज़ें घटित होती हैं। टू बिगिन विद, ओके वी हैव डन इट, सॉरी स्टूडेंट्स। Grandfather joined me, and together we looked down at what remained of the food. Python don't chew, they swallow. Outlined along the length of the large snake's slick body were the distinctive shapes of a chicken, a pie, 6 boiled egg। अब ये कह रहे हैं ग्रैंडफादर उनको, उसको देखते हैं, ज्वाइन करते हैं रस्किन बॉन्ड को, और उसको देख के कहते हैं कि पाइथन कभी भी च्यू नहीं करता। च्यू मीन्स क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ च्यू, चबाना, ठीक है, तो वो कभी च्यू मीन्स चबाना, तो पाइथन कभी भी च्यू नहीं करते हैं, चबाते नहीं हैं, वो सिर्फ चीज़ों को निगल जाते हैं। स्वेलो मीन्स क्या होता है, निगल जाना, ठीक है, तो वो सब चीज़ को वो सिर्फ निगल जाते हैं, स्वेलो मीन्स निगल जाना।
और हम देख सकते हैं कि उसकी बॉडी में पाई, चिकन और भी चीज़ें हैं, बॉइल्ड एग, ये सब दिख रही हैं. वी कुड नॉट मेक आउट द सैंडविचेस बट but presumably these had been eaten too, because there was no sign of them in the basket. Only a few apples remained. अभी कह रहे हैं कि सैंडविच का तो कहीं पता नहीं चल रहा था कि कहाँ है, कोई साइन नहीं था, लेकिन उसमें कुछ एप्पल्स ज़रूर थे, बचे हुए थे बास्केट में, और बास्केट में सैंडविच नहीं था. तो सैंडविच तो इसने खा लिया था और ये एप्पल में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो इसलिए एप्पल इसने छोड़ दिया. ग्रैंडफादर स्नैप्ड द बास्केट शट एंड पुश्ड इट बैक बेनेथ द बर्थ. उन्होंने बास्केट को जो है बर्थ के नीचे बंद करके रख दिया. वी मस्ट नॉट लेट ग्रैंड मदर सी हिम, ही सेड. और उसने ये भी कहा ग्रैंडफादर ने कि ग्रैंड मदर को पता नहीं चलना चाहिए. शी माइट थिंक दैट वी हैव बॉट हिम अलोंग ऑन पर्पस. क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि हम लोग लेके आए हैं एक पर्पस से, एक उद्देश्य से. वेल, आई एम हंग्री, आई कंप्लेन. ओके देन. And just then Chips returned from one of his forays and presented me with a peanut. मैंने कहा मुझे भूख लगी है. तब फिर इसके बाद जो है वहाँ से पीनट ले करके चिप्स वापस आई. फोरवेज मीन्स क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोरवेज? एक तरीके का वे. यहाँ पर वो जो है शॉर्ट विजिट करके आती है एक पर्पस से, जल्दी से जाती है और फटाक से आ जाती है. फोरवे मीन्स शॉर्ट विजिट विद अ पर्पस. ओके, तो आके उसके सामने पीनट प्रेजेंट करती है. क्लियर क्लास? एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.